ट्रिग्नोमेट्री के सम्स कर रहे थे। नेक्स्ट एग्जांपल फर्स्ट ईयर का नंबर है व्हिच इज if okay तो क्या है क्वेश्चन if 2 sin alpha upon 1 plus sin alpha plus cos alpha is equals to lambda then 1 plus sin alpha minus cos alpha divided by 1 plus sin alpha is equals to what? Okay, so we have four options. Number one is 1 upon lambda, second one is lambda, third one is 1 minus lambda, and fourth one is 1 plus lambda. तो क्या कर सकते हैं, हमारे पास वैल्यू किसकी है 2 sin alpha upon 1 plus sin alpha plus cos alpha equals to lambda. ओके, मतलब डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 plus sin alpha plus cos alpha जैसा कुछ है. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है 1 plus sin alpha, तो 1 plus sin alpha plus cos alpha जैसा ही कुछ होना चाहिए, राइट. तो अब हम क्या करेंगे, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. तो लिख लेते हैं 1 plus sin alpha minus cos alpha divided by 1 plus sin alpha. तो इसको 1 plus sin alpha plus cos alpha से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं. जी हाँ, 1 plus sin alpha plus cos alpha divided by 1 plus sin alpha plus cos alpha. ओके, आप देखो ये a is equals to 1 plus sin alpha है और b equals to cos alpha है, तो ये क्या हो जाएगा a minus b into a plus b which is equals to हम क्या लिख सकते हैं a square minus b square. तो 1 plus sin alpha whole square minus cos square alpha divided by ये क्या हो जाएगा 1 plus sin alpha into 1 plus sin alpha plus cos alpha. ओके, अब इसको जो है हम अलग कर देते हैं. 1 plus sin alpha whole square is equals to क्या होता है 1 plus 2 sin alpha plus sin square alpha, उसके बाद क्या है minus cos square alpha divided by यहाँ पे क्या था 1 plus sin alpha into 1 plus sin alpha plus cos alpha. अब बोलो क्या हो सकता है, any guesses? Any guesses? बोलो क्या हो सकता है इसके आगे. बोलना तो पड़ेगा ना. अब देखो 1 minus cos square alpha equals क्या होता है sin square alpha प्लस हमारे पास sin square alpha है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 sin square alpha plus 2 sin alpha yes divided by ये क्या हो जाएगा 1 plus sin alpha into 1 plus sin alpha plus cos alpha which is equals to ऊपर कॉमन निकलेगा 2 sin alpha yes अंदर क्या बचा sin alpha plus 1 divided by जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है वही 1 plus sin alpha into 1 plus sin alpha plus cos alpha. तो 1 plus sin alpha 1 plus sin alpha कैंसिल हो जाएगा, तो what we have left
what we are left with is 2 sin alpha divided by 1 plus sin alpha plus cos alpha. तो 2 sin alpha divided by 1 plus sin alpha plus cos alpha, इसकी इक्वल्स टू हमें वैल्यू क्या दी गई है, 2 sin alpha upon 1 plus cos alpha plus sin alpha is equals to lambda. So this is equals to lambda. So for option, correct answer is number 2, which is lambda. Next example, number 2, which is if 2 sin alpha into cos beta into sin gamma, if 2 sin alpha into cos beta into sin gamma is equals to, sin beta into sin alpha plus gamma, then tan alpha, tan beta and tan gamma are in AP, number 2, GP, number 3, HP, number 4, none of this. Okay? तो क्या करेंगे यहाँ पे, अब ये तो हमें पता है एपी क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और एचपी होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तो हमें पता है क्या होता है, तो अब हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है देख लेते हैं पहले, क्या हमें आंसर मिलता है, फिर भी देख लेते हैं। चलो बोल देती हूँ क्या होता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमारे पास क्या होता है, a1 a2 a3 जो है वो अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर है तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2a2 is equals to a1 plus a3। ओके, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, a2 minus a1 is equals to a3 minus a2 होगा, तो ये हो जाएगा हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर a1 a2 a3 जीपी में है तो क्या हो जाएगा, a2 square is equals to a1 into a3 या फिर हम बोल सकते हैं कि a2 divided by a1 is equals to a3 divided by a2, ये हो जाएगा, राइट। तो अब hp क्या होता है, hp होता है कि अगर a1 a2 and a3 आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है तो 1 upon a1 1 upon a2 and 1 upon a3 ये क्या बोला जाएगा, एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन बोला जाएगा। ओके, तो ये जो होगा वो हमारा हार्मोनिक प्रोग्रेशन होगा, 1 upon a1 1 upon a2 and 1 upon a3, बाकी सब जो है वो एज इट इज ही होगा जो AP के अंदर अप्लाई होता है वही। अब हमें क्या दिया गया है, 2 sin alpha into cos beta into sin gamma is equals to sin beta into sin alpha plus gamma। तो सबसे पहले वही यूज करते हैं, क्या है 2 sin alpha into cos beta into sin gamma is equals to sin beta into sin alpha plus gamma। अब बोलो क्या करेंगे, sin alpha plus gamma का फॉर्मूला बोलो तो क्या होता है, sin a plus b।
बोलो साइन ए प्लस बी क्या होता है? एस सी प्लस सी एस। एस सी प्लस सी एस। ओके, मतलब साइन अल्फा इंटू कॉस गामा प्लस साइन बीटा हम मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले ही, सी एस मतलब कॉस अल्फा इंटू साइन गामा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? 2 साइन अल्फा कॉस बीटा इंटू साइन गामा। ओके, अब क्या करेंगे? तो अब हम इसको ये कर सकते हैं कि पूरी जो इक्वेशन है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सभी को साइन अल्फा साइन बीटा और साइन गामा से डिवाइड कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? ये क्या मिलेगा? 2 साइन अल्फा साइन गामा तो कैंसिल हो जाएगा, cos बीटा अपॉन साइन बीटा which is equal to sin बीटा sin अल्फा कैंसिल हो जाएगा, cos गामा अपॉन sin गामा प्लस sin बीटा और sin गामा कैंसिल हो जाएगा, cos अल्फा अपॉन sin अल्फा which implies that 2 cot बीटा is equals to cot gamma plus cot alpha। ओके, मतलब हम इसको लिख सकते हैं कि देखो cot अल्फा बीटा और गामा क्या हुआ हमारे पास? ओके, तो cot अल्फा बीटा और गामा जो है वो किसमें हुआ हमारे पास? बोलो। देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुआ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? 2a2 is equals to a1 plus a3। ओके, तो ये जो है 2 cot बीटा is equals to cot alpha plus cot gamma मिला हमें, तो cot alpha cot बीटा एंड cot gamma are in arithmetic progression। हमें दूसरा किसके लिए गया है? यस मैम लास्ट स्टेप थोड़ी समझा ना, cos बीटा sin बीटा। ये जो पूरी टर्म है sin अल्फा cos बीटा sin गामा इज इक्वल टू sin बीटा sin अल्फा cos गामा प्लस sin बीटा cos गामा cos अल्फा इनटू sin गामा। ओके, तो सभी के अंदर sin अल्फा sin बीटा sin गामा है, तो पूरी टर्म को हम sin अल्फा इनटू sin बीटा इनटू sin गामा इससे डिवाइड कर लेंगे पूरी की पूरी टर्म को। तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं फ्रॉम sin अल्फा sin बीटा इनटू sin गामा के इसको भी डिवाइड करेंगे sin अल्फा इंटू साइन बीटा इंटू साइन गामा, इसको भी डिवाइड करेंगे sin अल्फा sin बीटा और sin गामा से। ठीक है, तो देखो sin गामा कैंसिल हो जाएगा, sin बीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे sin अल्फा sin बीटा कैंसिल होगा, यहाँ पे sin अल्फा sin गामा कैंसिल होगा। तो हमारे पास बचा क्या? 2 टाइम cos बीटा अपॉन sin बीटा, cos गामा अपॉन sin गामा, cos अल्फा अपॉन sin अल्फा। तो ये हो गया 2 cot बीटा is equals to cot अल्फा प्लस cot गामा। तो cot अल्फा cot गामा एंड cot बीटा मतलब cot अल्फा cot बीटा एंड cot गामा आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गए। अब ये तीनों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, लेकिन हमें चाहिए किसके लिए? tan के लिए। तो tan क्या हो जाएगा हमारे पास? इसको लिख सकते हैं 2 upon tan बीटा is equals to 1 upon tan अल्फा प्लस 1 upon tan गामा सॉरी tan गामा। तो tan अल्फा tan बीटा एंड tan गामा किसमें हो गया? हार्मोनिक प्रोग्रेशन। समझ में आया? यस मैम। ओके, तो ये हुआ हमारा हार्मोनिक प्रोग्रेशन। नेक्स्ट एग्जांपल, नंबर 3। if cos 2x plus 2 cos x is equals to 1, then sin square x into 2 minus cos square x is equal to number 1 is 1, 2 is minus 1, 3 is minus root 5 and 4 is root 5।
क्या दिया हुआ है हमें cos 2x plus 2 cos x is equals to 1. Then sin square x sorry sin square x into 2 minus cos square x is equals to, ये हमें फाइंड करना है हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसी के साथ चलते हैं। हमें फाइंड करना है sin square x into 2 minus cos square x। अब क्या दिया गया है, सबसे पहले अब इसको देख के लगता नहीं हम कुछ कर पाएंगे क्या दिया है वो देख लेते हैं क्या है हमारे पास cos 2x plus 2 cos x is equals to 1 हम लिख सकते हैं cos 2x is equals to 2 cos square x minus 1 yes plus 2 cos x और ये 1 यहाँ पे आ जाएगा तो minus 1 is equals to 0। अब ये हो जाएगा 2 cos square x plus 2 cos x minus 2 is equals to 0, which gives us, from this we can write that cos square x plus cos x minus 1 is equals to 0। ओके अब ये देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। अगर मैं cos x is equals to t ले लूं, क्या है हमारे पास cos square x plus cos x minus 1 is equals to 0। ओके अगर मैं cos x is equals to t ले लूं तो मुझे क्या मिलेगा t square plus t minus 1 equals to 0। तो इसका सॉल्यूशन मैं कर सकती हूँ कैसे, t is equals to minus b plus or minus square root of b square minus 4ac divided by 2a okay which is equals to b क्या है हमारे पास 1, so minus 1 plus or minus square root of b square minus 4ac, b square is 1 minus 4a is into c, so minus 4 into minus 1 which is plus 4 divided by 2 into a is 1, so we have minus 1 plus or minus square root of 5 divided by 2। तो ये जो है वो हमारा आंसर मिला cos x। okay so we can write that cos x is equals to minus 1 plus root 5 by 2 or cos x is equals to minus 1 minus root 5 divided by 2। okay अब इसको मुझे हमें क्या चाहिए क्वेश्चन के अंदर देखो यहाँ पे sin square x है, यहाँ पे cos square x है, मतलब cos x की हमें जरूरत नहीं है, हमें we need cos square x। तो cos square x जो है वो क्या हो जाएगा sorry cos square x is root 5 minus 1 whole square, minus 1 है root 5 प्लस है तो इसको हम ले लेते हैं square root of 1 minus 1 divided by 2 whole square हो जाएगा cos square x। इसका स्क्वायर कर लेंगे तो क्या बोलो root 5 minus 1 divided by 2 whole square क्या आएगा क्या है root 5 minus 1 divided by 2 whole square 1 root 5 minus 1 by 2 whole square 1 कैसे है, मतलब फुल आंसर बोल रहे हो आप sin square इसके अंदर वैल्यू रखने के बाद। root 5 square is 5
minus 2 root 5 plus 1, which is equals to 6 minus 2 root 5 divided by 4, which we can write it 3 minus root 5 divided by 2. तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 3 minus root 5 by 2. अब इसकी जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे रखेंगे sin square x is equals to 1 minus cos square x, तो 1 minus 3 minus root 5 divided by 2. तो 2 minus 3 minus root 5 divided by 2. इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो बोलो क्या आ रहा है? क्या मल्टीप्लिकेशन? आया आंसर किसी का? ये देखो क्या हो रहा है, 2 minus 3, 2 minus 3 is minus 1 minus root 5 divided by 2. ये हो जाएगा 4 minus 3 just plus 1 minus root 5 divided by 2. अब देखो minus 1 by 2 minus root 5 by 2 plus 1 by 2 minus root 5 by 2, a square minus b square ही होगा. क्या है आंसर? It's 1. करेक्ट. तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारा जो आंसर है वो हमें मिल गया 1. नेक्स्ट, अच्छा एक और चीज, मैंने यहाँ पे सिर्फ रूट 5 माइनस 1 डिवाइड बाय 2 होल स्क्वायर क्यों दिया? हमारे पास दो आंसर थे, एक रूट 5 माइनस 1 बाय 2 और एक माइनस रूट 5 माइनस 1 बाय 2. ये बट वी हैव टेकन ओनली दिस वन व्हिच इज रूट 5 माइनस 1 बाय 2. क्यों? क्योंकि cos की वैल्यू है हमारे पास. अब cos x ये होगा, देखो माइनस 1 माइनस रूट 5 बाय 2, तो दिस इज लेस देन माइनस सॉरी दिस वैल्यू इज लेस देन माइनस 1 और cos x की जो वैल्यू है वो माइनस 1 से लेके 1 के बीच में ही होगी, कभी भी माइनस 1 से लेस देन नहीं होगी और 1 से ग्रेटर देन नहीं होगी. तो ये जो cos x की वैल्यू है ये पॉसिबल नहीं होगी माइनस 1 माइनस रूट 5 बाय 2. इसीलिए हमने सिर्फ और सिर्फ यही एक वैल्यू ली है cos की, व्हिच इज रूट 5 माइनस 1 डिवाइड बाय 2. नेक्स्ट एग्जांपल नंबर आया हम 4th. which is the value of tan 20 plus 2 tan 50 minus 10
70 is number 1 1 2 0 3 10 50 4 none of this. And the value of 10 20 degree plus 2 10 50 degree minus 10 70 degree. तो सबसे पहले इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये 2 टाइम्स है तो इसको पहले लिख लेते हैं, दिस 2 tan 50 डिग्री प्लस माइनस से लेते हैं माइनस 10 70 डिग्री माइनस 10 20 डिग्री। अब याद करो tan A माइनस 10 B, इसका फॉर्मूला मैंने लास्ट सैटरडे आपको लिखवाया था, क्या था? मैं 10A minus 10B 1 plus 10 into 10B। 10A minus B का नहीं, 10A minus 10B का फॉर्मूला मैंने अलग से लिखवाया था लास्ट लेक्चर में, लास्ट सैटरडे। sin A minus B upon cos A into cos B लिखा है, याद देख लो एक बार। चलो कोई नहीं, अभी याद रख लो कि यही मैंने लिखवाया है। tan A minus tan B is equals to sin A minus B divided by cos A into cos B होता है। तो यही फॉर्मूला tan A minus tan B हम tan 70 minus tan 20 के अंदर यूज करेंगे। तो व्हाट वी गेट इज 2 tan 50 डिग्री minus tan 70 minus tan 20 is equals to sin A minus B। sin A minus B is sin 70 minus 20 which is sin 50 degree divided by cos A। cos A मतलब क्या हो जाएगा? cos 70 डिग्री into cos B is cos 20 डिग्री। ओके, अब क्या करेंगे? cos 70 cos 20 ये क्या होगा? अब एक और चीज हमें पता है, cos 70 डिग्री इसको हम लिख सकते हैं sin 20 डिग्री which is sin 90 minus cos 90 minus 20 is equals to sin 20 होता है, याद है? cos 70 is equals to sin cos 90 minus 20, okay, and cos 90 minus 20 is equals to sin 20। तो cos 70 is equals to sin 20 डायरेक्टली हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे 2 tan 50 minus sin 50 divided by sin 20 into cos 20। ओके, अभी sin 20 into cos 20 है तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो 2 sin 20 into cos 20 क्या हो जाएगा? sin 40 which is equals to 2 tan 50 minus 2 sin 50 divided by sin 40 डिग्री हुआ। समझ में आ रहा है यहाँ पे? मैं पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 sin 20 into cos 20 से अपने पास sin to theta का फॉर्मूला है। हाँ मैम। Okay, so we'll use this thing कि sin 20 into cos 20 is equals to 2 sin 20 into cos 20 is equals to sin 2 theta, so sin 40 है जैसे। now sin 40, okay, फिर से वही अप्लाई करेंगे, sin 40 is equals to sin 90 minus 50 and sin 90 minus 50 is equals to cos 50, so we can apply that 2 tan 50 minus 2 sin 50 divided by sin 40 is equals to cos 50
Now sin 50 upon cos 50 is equals to tan 50. So 2 tan 50 minus 2 tan 50 is equals to 0. So our answer is 0. समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So next one, number 5. Sin 78 degree minus sin 66 degree minus sin 42 degree plus sin 6 degree is equal to number 1 1 by 2, 2 minus 1 by 2, 3 2 4 minus 2. ओके, तो क्या करेंगे? देखो s माइनस s दिख रहा है यहाँ पे हमें सिंपल सी चीज है, क्या हो जाएगा? इसको हम यूज करेंगे एज sin 78। अच्छा, कौन सा वाला इजी रहेगा सबसे पहले देख लेते हैं। sin 78 के साथ क्या जाएगा? 42 और sin 66 और 6 को साथ में लेते हैं तो 66 माइनस 6 जो है वो हो जाएगा इजी। ओके, तो sin 78 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा? sin 66 डिग्री माइनस sin 6 डिग्री। ओके, अब s माइनस s हमें पता है, s माइनस s क्या होता है? 2cs। तो ये क्या आ जाएगा? 2 cos 78 plus 42 divided by 2 into sin 78 minus 42 divided by 2 माइनस ये भी हो जाएगा 2cs which is 2 cos 66 plus 6 divided by 2 into sin 66 minus 6 divided by 2 which is equals to 2 times cos 78 plus 42 divided by 2 which is equals to 120 by 2 is 60 degree into sin 78 minus 42 divided by 2 which is 36 by 2 is 18 degree minus 2 cos 66 plus 6 is 72 divided by 2 is cos 36 degree into sin 60 divided by 2 is 30 degree. Okay, now we know that cos 60 is 1 by 2, sin 30 is 1 by 2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचा? sin 18 minus cos 36 which is equals to sin 18 degree minus cos 36 degree. अब बोलो इसके बारे में आपको कुछ पता है, याद है? वैल्यूज याद है क्या इसकी? sin 18 degrees √5 minus 1 divided by 4 minus cos 36 is √5 plus 1 divided by 4. तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा इसके लिए? दोनों का एलसीएम तो सेम ही होगा, √5 minus 1 minus √5 minus 1 divided by 4, √5 cancel out. So we have minus 1 is minus 2 by 4 is minus 1 by 2. So our answer is number 2, minus 1 by 2. Okay. Next कौन सा नंबर है? 6 is if tan a plus b is equals to p and tan a minus b is equals to q, then tan 2a is equals to number 1 p plus q upon p minus q, number 2 p minus q upon 1 plus pq, number 3 p plus q upon 1 minus pq, number 4 1 plus pq divided by 1 minus p. ये शायद मैंने इस संडे वाले टेस्ट में पूछा था। चलो एक काम करो, ट्राई इट आउट, अब करो, फिर अगर नहीं आता है तो मैं करवाती हूँ। यू हैव 2 minutes फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन और मैथमेटिकल इंडक्शन दोनों में से क्वेश्चंस आएंगे। ऑप्शन 3 p plus q upon 1 minus pq correct आंसर इज नंबर 3। बाकी सबका आ गया? yes it's p plus q upon 1 minus pq okay so सबका आ गया आंसर p plus q upon 1 minus pq। नेक्स्ट नंबर 7 हिंट दे, अगर किसी को हिंट चाहिए तो we can write that tan a plus b okay हमारे पास tan a plus b की वैल्यू है, tan a minus b की भी वैल्यू है, so we can find that tan, हमें tan 2a चाहिए तो a plus b plus a minus b is equals to tan a plus b plus tan a minus b divided by 1 plus tan a plus 1 tan a plus b का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई कर देना 1 minus tan a plus b into tan a minus b और a plus b a minus b की वैल्यू हमारे पास है तो we can have directly p plus q upon 1 minus pq। ये so वन स्टेप का ही सिर्फ क्वेश्चन है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 7 which is in any triangle ABC sin A minus cos B is equals to cos C, then angle B is number 1 pi by 2, number 2 pi by 3, number 3 pi by 4, number 4 pi by 6। ओके सो बहुत इजी है, कुछ ऐसा डिफिकल्ट है नहीं यहाँ पे। क्या दिया हुआ है sin a minus cos b equals to cos c and we want to find the angle of angle b। ओके तो सिंपल से हम लिख सकते हैं sin a is equals to cos b plus cos c। okay now we know the formula of sin 2a। sin 2a क्या होता है 2 sin a into cos a और sin a क्या हो जाएगा 2 sin a by 2 into cos a by 2 which is equals to now cos b plus c। c plus c क्या होता है 2cc तो ये हो जाएगा 2 times cos b plus c divide by 2 into cos b minus c divide by 2। अब हमें एक और चीज दी गई है कि in any triangle yes मैम स्टेप फॉर ये एक्सप्लेन करो ना करो हाँ फॉर्मूला अप्लाई करो बेटा। देख sin a minus cos b equals to cos c है तो sin a cos b ने अपने राइट हैंड साइड में ले लिया तो sin a equals to cos b plus cos c। अब c plus c cos b plus cos c so that 2cc which is 2 cos b plus c divided by 2 into cos b minus c divided by 2 sin a છે અહીંયા બધામાં divided by 2 આવે છે તો અહીંયા sin ને પણ આપણે એ રીતે કન્વર્ટ કરી દીધું sin a ના ફોર્મ્યુલા sin 2a as equals to by 2 sin a into cos a पर a की जगह 2a की जगह हमारे पास a है तो we have written that 2 sin a by 2 into cos a by 2 और 2 2 बने साइड कैंसिल हो सकता है। okay now we have that triangle abc तो triangle abc मतलब a b and c ત્રણે ત્રણ એંગલ થશે આપણી પાસે so we can write that angle a plus angle b plus angle c is equals to 180 degree or is equals to pi right। So from this we can also write that b plus c as equals to pi minus a right as we have a plus b plus c is equals to pi so we can write that b plus c is equals to pi minus a। So now here we have cos b plus c by 2 so we can write that cos pi minus a okay so which is equals to sin a by 2 into cos a by 2 is equals to
cos okay b plus c which is pi minus a डिवाइड बाय 2 into cos b minus c के लिए हमारे पास कुछ नहीं है तो वैसे ही रखेंगे ओके नाउ cos this is equals to cos pi by 2 minus a by 2 into cos b minus c divided by 2 now cos pi by 2 minus a by 2 is equals to sin a by 2 into cos b minus c divided by 2 which is equals to sin a by 2 into cos a by 2 जब sin a by 2 cancel हो जाएगा so from this we can write that cos a by 2 is equals to cos b minus c divided by 2 and from this we can write that a by 2 is equals to b minus c divided by 2 okay तो 2 cancel हो जाएगा from this we can write that a is equals to b minus c from this we can write that a plus c is equals to b now again we know that a plus b plus c is equals to pi so from this a plus b plus c is equals to pi we can write that a plus c okay a plus c is equals to pi minus b okay so यहाँ पे हाँ सॉरी क्या करेंगे हम सॉरी a equals to b minus c है तो इसी के अंदर अप्लाई कर लेते हैं वी नो दैट a यहाँ पे तो b भी कैंसिल हो जाएगा इसलिए यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ मैं ऐसा मत समझना क्यों ये किया तो अगर a plus c equals to pi minus b किया तो कर सकते हैं ना a plus c is equals to pi minus b is equals to b तो ये b यहाँ पे चला जाएगा तो pi is equals to 2b and from this we can write that b is equals to pi by 2 so we have the value of b is pi by 2 जो हमें चाहिए था राइट हमें क्या चाहिए था the angle b वो हमें मिला pi by 2 which is our example option number 1 समझ में आया कोई डाउट नो कोई डाउट नहीं okay so next one number 8 if a b c d is a cyclic quadrilateral such that 12 tan a minus 5 is equals to 0 and 5 cos b plus 3 is equals to 0 then the quadratic equation whose roots are cos c and tan b is number 1 39x square minus 16x minus 42 is equals to 0 number 2 39x square plus 88x plus 48 is equals to 0 number 3 39x square minus 88x plus 48 is equals to 0 number 4 is none of this okay क्या कर सकते हैं ये आइडिया any idea for this question if ABCD is cyclic quadrilateral such that 12 tan A minus 5 equals to 0 and 5 cos B plus 3 is equals to 0, then the quadratic equation whose roots are cos C and tan B is
मतलब हमें दिया गया है कि एबीसीडी जो है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ए के बाद बी के बाद सी और डी, ये ऐसा ही होगा। ओके, एबीसीडी क्वाड्रिलेटर ठीक नहीं बना है लेकिन समझ जाना ये एबीसीडी होगा। ओके, इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर सच दैट 12 tan a minus 5 is equals to 0 and 5 cos b plus 3 equals to 0, then the quadratic equation हमें फाइंड करनी है जिसका जो रूट्स है वो cos c and tan d होगा। मतलब हमारे पास यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आनी चाहिए और ट्रिग्नोमेट्री भी आना चाहिए और क्वाड्रिलेटर भी आना चाहिए। ओके, तो अब हमें ये तो पता है a plus c जो है वो क्या हो जाएगा, a plus c is equals to 180, सिमिलरली b plus d is also 180 क्योंकि क्वाड्रिलेटर है। तो ये तो हमें पता है कि a plus c equals to 180 होना चाहिए, b plus d is equals to भी 180 होना चाहिए और टोटल जो है वो 360 होगा, राइट। अब इसके ऊपर से हमारे पास है 12 tan a minus 5 is equals to 0, तो इसके ऊपर से हम लिख सकते हैं tan a is equals to 5 by 12। ओके, दूसरा हमें क्या दिया गया है 5 cos b plus 3 is equals to 0। तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं cos b is equals to minus 3 by 5, तो ये दोनों वैल्यू हमारे पास है। Now we know that a plus c is equals to 180, तो c is equals to 180 minus a। ओके, तो इसके ऊपर से हम लिख सकते हैं 180 माइनस मतलब पाई माइनस c हो जाएगा। ओके, तो tan a is equals to tan पाई माइनस c हम लिख सकते हैं तो tan पाई माइनस c is equals to 5 by 12 है। ओके, तो tan पाई माइनस c, तो याद करो पाई यहाँ पे है, पाई माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, सिर्फ और सिर्फ साइन, तो tan क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो tan c क्या हो जाएगा -5 by 12। समझ में आया? तो tan c की वैल्यू अगर हमें -5 by 12 मिल गई तो अब हमारे पास तो पाइथागोरन ट्रिपलेट्स है, तो वही चेक कर लेते हैं tan क्या होता है -5 by 12 अगर है तो यहाँ पे होगा -5, यहाँ पे 12। ओके, समझ लो -5 नहीं होगा लेकिन यहाँ पे हम 5 by 12 ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो 13। यस इट्स 13। ओके, तो हमारा जो cos c है वो cos c क्या होगा, ये प्लस ही रखते हैं अभी, cos c क्या होगा, अगर tan c -5 by 12 है तो cos क्या हो जाएगा 12 by 13। ओके, अब फिर से हम देखते हैं कि c कहाँ पे है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है tan नेगेटिव है तो cos d क्या होगा नेगेटिव, तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आएगी cos c -12 by 13। समझ में आया? यस मैम। तो cos c हमें मिल गया -12 by 13। हमें दूसरा क्या चाहिए tan d, राइट, tan d चाहिए। अब हमारे पास दूसरी एक चीज है b plus d is equals to pi, so from this we can write that b is equals to pi minus d। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास cos b की वैल्यू है, so we can write that also we know that cos b is equals to -3 by 5। ओके, तो cos pi minus d is also -3 by 5। cos pi minus c मतलब फिर से सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है नेगेटिव। ओके, तो cos d अब फिर से जो है वो cos d की वैल्यू चेंज हो जाएगी, फिर से नेगेटिव होगा तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा व्हिच इज 3 by 5। समझ में आया? cos pi माइनस हो रहा है तो इसकी भी नेगेटिव वैल्यू होगी और इसकी भी नेगेटिव वैल्यू मतलब पॉजिटिव 3 by 5 हो जाएगा हमारे पास। अब cos d जो है वो 3 by 5 है। ओके, ये क्या हो जाएगा 3 by 5, तो यहाँ पे क्या आएगा ऑब्वियस सी चीज है 4, ये तो हमें पता ही है पाइथागोरन ट्रिपलेट, तो sin d क्या मिलेगा हमें 4 by 5 सॉरी, और tan d हमें क्या चाहिए tan d चाहिए, तो tan d is 4 by 3। सिंपल सी चीज है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तभी ये सब पॉजिटिव मिल रहा है हमें। तो tan d is 4 by 3, cos c क्या था क्या मिला cos c हमें -12 by 13,
तो ये दोनों अगर हमारे पास रूट्स है तो ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लेनी है हमें। ओके, तो ले लेते हैं cos c अल्फा इन tan d बीटा। तो अगर अल्फा और बीटा हमारे क्वाड्रेटिक रूट्स है तो इसकी इक्वेशन क्या मिलती है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो x² माइनस अल्फा क्या है 12/13 प्लस बीटा इज 4/3 into x plus alpha into beta which is minus 12/13 into 4/3 which is equals to 0। तो बोलो, अब तो हमें पता है 39 तो पहले आने ही वाला है, तो 39x² माइनस यहाँ पे क्या मिला हमें ये 3 है, 39 से मल्टीप्लाई 3 क्या हो जाएगा 30 माइनस 36 प्लस, बोलो क्या आ रहा है इक्वेशन, हमें इक्वेशन बोलो तो कौन सी आ रही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ में से। नंबर 1 ये लोग आगे वाला क्वेश्चन मैम यस सेकंड ऑप्शन। सेकंड 88x आ रहा है हाँ मैंने चेक नहीं किया। 12 into 3 46 minus 76 minus 4 into 30 नहीं फर्स्ट ऑप्शन आएगा 16x आ रहा है। सी 12 into 3 क्या हो जाएगा 36 which is minus 36 and 4 into 30 वो हो जाएगा 52। तो 52 minus 36 क्या होता है 16। तो फिर मैंने साइन joining है ना लीते हो minus 6 बस तो एज भूल था से एग्जाम બીજી તો કોઈ ભૂલ થશે भी नहीं ऑप्शन એટલે તો આવા આપ્યા છે। This our answer is first one 39x² minus 16x minus 48 is equals to 0। Now I have two questions for you in homework. Number 9 is the maximum value of cos alpha 1 into cos alpha 2 up to cos alpha n under the restrictions 0 is less than or equals to alpha 1 into alpha 2 up to alpha n is less than or equals to pi by 2 and cot alpha 1 into cot alpha 2 up to cot alpha n is equals to 1 is option number 1 1 upon 2 raised to n by 2, number 2 1 upon 2 raised to n, number 3 1 upon 2n and number 4 is 1। कि एक ये है आपके होमवर्क में, सेकंड चलो एक ही करो चलेगा। Okay, and now I have a lecture in standard 12, so we have to stop here।